So, good morning, dear friends, and welcome to Lavasana in the Queen of Hills, Mussoorie. We are in the second session after our introductory session in the morning today, and I welcome our esteemed guest faculty, Sri Santosh Yadav sir. As we are here for 5 days in service training program for transportation, logistic and multimodal connectivity, multimodal integration. In the beginning, a little bit introduction in brief of our guest faculty. Santosh Yadav sir is an IS officer of UP Cadre 1995 batch. Born and brought up in Firozabad, Uttar Pradesh. Sir started his career as joint magistrate from Sonbhadra in UP, and then afterwards he was joint magistrate in some other districts as well. Later he became CDO to some important districts of Uttar Pradesh: Unnao, Gazipur, Kanpur Nagar, Bulandshahr and Kanpur Dehat. He remained DM in Lalitpur, Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, and some other districts like Muzaffarnagar, Bareilly and Aligarh also. He was commissioner in Meerut and VC, Vice Chairman of Ghaziabad Development Authority. He later became CEO of Yamuna Expressway Industrial Development Authority, and presently he is Chairman of National Highways Authority of India. So welcome to Lavasana sir. Today, as you know, we are in service training program sponsored by DOPT. Participants will gain knowledge and learning regarding transportation, logistic and multimodal integration in harmonious development by bringing in seamless upgradation and economic health of the country with evolving demand and role of the transportation sector by enhancing plug and play infrastructure. So sir, being expert in the highways and expressway field, will deliver his lecture today. Over to you, sir. Thank you. Faculty members of the Academy, my dear colleagues in the service, it's always a pleasure to be here in the Academy. यार जब आप Academy आते हो, आपका जो alma mater होता है, you know, every corner, every nook speaks to you. And today's the best part is, I was glancing through the list of participants, different ministries, be it airport, be it railways, be it port and shipping, be it, you know, representatives from the states. Everybody is present over here. So, very warm welcome to each and everybody. I am seeing Rajiv, my batchmate, way back in 1995. We were here in Ganga Top. He was my next door neighbor. It's always very nostalgic. Yeah. I came here yesterday. So today I have been told to tell about how National Highway is linking economic corridors of the country. So broadly, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो व्हेनेवर आई यूज से NHAI, assume that I am telling मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वो नेशनल बिल्डिंग कैसे कर रही है. So broadly, if you today I have divided my presentation in 6 parts. The first is नेशनल की इकोनॉमी के लिए what is the importance of national highways. Then how do we plan a network so that the transportation system, this system is efficient. Once you plan a network, then उस नेटवर्क के अंदर कॉरिडोर्स बनाने होते हैं. मतलब कंट्री में एक नेटवर्क बना लिया, उसके अंदर कॉरिडोर, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हुआ, उस कॉरिडोर को कैसे प्लान करते हैं. We use the principle of PM Gati Shakti. Rajiv is there. Rajiv is the one who looks after for a country from ministry side this aspect. Then once the road is made, what is the test? एक road बन गई, the road has to be safe. The road has to be, you know,
एफिशिएंट, और जो उस पर ट्रेवलर है इट शुड हैव ए वर्ल्ड क्लास प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. सो हाउ वी डू दैट? एंड फाइनली रोड, रोड तो बनाएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो हाउ टू फाइनेंस द रोड? देन लास्ट आई एडेड बिकॉज यू गाइस इज ओवर हियर, अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाए, हाउ कैन बी स्पीड इंक्रीज द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज? क्योंकि रोड बनाने में देयर आर ऑल्सो बॉटलनेक्स. तो फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इट एनहांसेस द पेस ऑफ इकोनॉमी. एक बार इकोनॉमी इंप्रूव हुई तो सिटीजन्स लाइफ इंप्रूव होती है. दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल. सो infrastructure has many components. So today I will be talking about roads. ये कहा जाता है कि if you pump in a rupee, अगर आपने ₹1 इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला, तो 2.5 to 3 times आपकी जीडीपी इंक्रीज कर जाती है. दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड. और नेशन एज ए होल, एज ए नेशन वी हैव डिसाइडेड दैट बाई 2047 वी विल बी वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये हमने कॉन्शियसली चूज किया है कि हम 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होंगे. अगर ये 30 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पे होगी. बैकबोन हैज टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इस ग्रोथ को लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, और यही ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड को प्रोपल करेगा. तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत पहले रियलाइज कर लिया कि कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को इंप्रूव करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा. इन लास्ट एक डिकेड में द गवर्नमेंट हैज enhance the capital infrastructure outlay for road sector like anything. अभी राइट साइड आप देखें, फर्स्ट ये राइट साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन होगी. पाइपलाइन होगी 174 लाख करोड़ की. इसके दो कंपोनेंट होंगे, ग्रीन एंड रेड, ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उन्होंने 37% एलोकेट किया आउट ऑफ 174 लाख करोड़. नाउ कम टू द लेफ्ट. अब ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखें तो नेशन में जो फ्रेट मूवमेंट होता है 71% फ्रेट मूव्स थ्रू रोड. अगर पैसेंजर्स को भी अगर आप मूवमेंट देखें तो लगभग 70% पैसेंजर मूव, 70% पैसेंजर मूव थ्रू रोड्स. सो रोड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोड्स आर एंड रोड्स विल रिमेन ए डोमिनेंट एंड क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो आप देखें फिर हम अगेन 37% में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलॉकेट किया गया उसका फुल 50%, उसका पूरा आधा रोड को दे दिया जाता है. विच मीन्स लगभग 32 लाख 32 लाख करोड़ रुपीज गवर्नमेंट हैज अ पोर्शन फॉर रोड सेक्टर. तो इससे देश को फायदा भी हुआ. इससे फायदा हुआ जो जिस हिसाब से कैपिटल आउटले गवर्नमेंट ने एलोकेट किया उस हिसाब से अवार्डिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टर्स को रोड बनाने के लिए लेटर इशू करना. द कंस्ट्रक्शन इज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन. तो आप देखें सरकार पिछले 5 years में एवरेज 33,000 करोड़ पर एनम दिया करती थी रोड सेक्टर को. नाउ इट इज 73,000. और इस साल पता है कितना दिया? टू मी NHAI ओनली 2.50 लाख करोड़. 2.5 लाख करोड़ रुपए मुझे इस साल स्पेंड करने के लिए दिया. काइंड ऑफ मनी है. उससे आप देखिए उसका रिजल्ट लगभग 11,000 किलोमीटर सड़कें, 11,000 किलोमीटर सड़क अवार्ड करते हैं और लगभग 11,000 किलोमीटर सड़क वी आर कंस्ट्रक्टिंग. सो इफ ट्रांसलेटेड टू पर डे कितने रोड बना रहे हैं? इन 2014 to 19 द फर्स्ट टर्म ऑफ द गवर्नमेंट वी वर मेकिंग 21 किलोमीटर रोड पर डे. नाउ दिस 5 years वी आर मेकिंग 34 किलोमीटर रोड पर डे. यार पीछे ना होगा जरा तो मैं सॉरी थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है. कम टू द टेक्नोलॉजी. पीछे आ जाएगी जरा प्रेजेंटेशन पहले.
ब्रॉडली नेक्स्ट आप यहाँ से मूव करते हैं। सो ब्रॉडली जो है यू नो व्हाट वी डू, रोड कैसे बनती है, पूरा रोड का इकोसिस्टम, द वर्ड इज कायनात। रोड की कायनात क्या है? वी प्लान द नेटवर्क पहले, थ्री लेवल। पहले नेटवर्क प्लान करेंगे, नेटवर्क प्लान करने के बाद उसके अंदर कॉरिडोर्स प्लान करेंगे, कॉरिडोर्स प्लान करने के बाद जो रोड बन गया, रोड हैज टू बी, उसका टेस्ट है कि राइडिंग एक्सपीरियंस हैज टू बी और यूजर कन्वीनियंस हैज टू बी वेरी गुड। बट इन तीनों के पीछे अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट द थीम विच गाइडेंस ऑल थ्री, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, यानी कि जो फ्रेट मूव करता है वो कितना जीडीपी का इस समय कंट्री में जो फ्रेट मूव करता है उसकी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है 14%। अगर देश को डेवलप होना है तो डेवलप नेशन ऑफ द वर्ल्ड 9% है, यानी 5% उसको डाउन करना है। तो जितनी भी सारी कवायद हो रही है, द ऑल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू, आर वी डूइंग, इज टू ब्रिंग दैट द कॉस्ट ऑफ फ्रेट मूव। नेक्स्ट, अब यू नो ये नेटवर्क हम लोग प्लान कैसे करते हैं? सो लेट मी टेल यू अबाउट कि किस तरह से नेटवर्क प्लानिंग कंट्री में इवॉल्व हुई। आई टेक यू थ्रू एग्जाम्पल में लूंगा मुंबई से कलकत्ता। सो इनिशियली यू नो जब हम लोगों ने रोड 2007 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उस समय हम लोग कैसे रोड प्लान करते थे? इसका उस पर आ जाना प्लीज, हाइपर लिंक पर, समबडी कैन क्लिक द हाइपर लिंक। Somebody can click the hyperlink here. आप यही है। तो पहले क्या किया करते थे हम, जैसे मुंबई से कोलकाता रोड बनानी है तो क्या किया करते थे? राइट, तो कोलकाता से मुंबई सड़क बनानी है, इस फेज में क्या किया करते थे? कहीं पर हमने 2 लेन बना दी, कहीं पर 4 लेन बना दी, कहीं पर 6 लेन बना दी। क्यों? जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा जरूरत है वहाँ 4 लेन बना दी, और ज्यादा है 6 लेन, जहां नहीं है 2 लेन। व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ इट? यार आप 4 लेन से चल रहे हो, अचानक 2 लेन पे आ गए, यू नो लेन कन्फिग्रेशन इज इनकंसिस्टेंट और आपका जो ट्रेवल एक्सपीरियंस इज नॉट गुड, और ट्रक तेज आया, रुक गया। तो इससे नुकसान क्या था? बट इट वॉज इनिशियल फेज। नुकसान ये था इसका लॉजिस्टिक एफिशिएंसी विच वर एमिंग टू वेंट हेवायर। बट इस फेज में भी हम लोगों ने, बगैर प्लीज, इस फेज में भी हम लोगों ने कॉरिडोर्स बनाए, गोल्डन कॉरिडोर बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया। फिर 2017 में भी रियलाइज ये अप्रोच काम नहीं कर रही, तो व्हाट वी डिड कि कंट्री ने स्टडी कराई, उसका नाम था लीप, लॉजिस्टिक एनहांसमेंट एंड एफिशिएंसी प्रोग्राम। उससे ये देखा कि देश में फ्रेट मूव कैसे करता है। तो देखा कि कंट्री का जो फ्रेट है 80% फ्रेट मूव्स ऑन 65,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स। अगर उस 65,000 किलोमीटर रोड को कंट्री में बना दूं तो मुझे एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। तो हमने उसका नाम दिया भारतमाला, जिसको आप सुनते होंगे। तो भारतमाला एक अम्ब्रेला प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और उसके 2 कंपोनेंट, द 2 कंपोनेंट वाज भारतमाला फेज 1, भारतमाला फेज 2। From 2017 to 2023 phase 1, 2023 to 2029 phase 2, ये होना था। तो इसमें हम लोग बेसिकली व्हाट वी डिड, इसमें हमने कहा हम इसकी कॉरिडोर प्लानिंग करेंगे, लाइक दैट। तो क्या किया, अगेन मुंबई कलकत्ता को लेकर, तो व्हाट वी डिड, मुंबई से नागपुर इसको 6 लेन कर दिया, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रैफिक ज़्यादा था। बट नागपुर से कॉरिडोर 4 लेन रहा, दिस वाज द। और इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाएंगे भारतमाला फेज 1, एंड वी डिड मेक, आई विल कम टू दैट। हम लोगों ने 25 हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए इसमें। लेकिन यार इसमें आप देखो ना, गो बैक यार, रोड जो है, रोड तो बना दिया, देश का पैसा आपने लगा दिया, रोड इज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी यार, रोड इज इन साइलो। हाउ इट कैन बी कि आप इतना पैसा खर्च करके रोड बना दे रहे हैं, बगल में इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज है, उनको नहीं जोड़ रहे हैं। हाउ यू कैनॉट यू कैनॉट वेस्ट मनी, नेशंस मनी लाइक दिस यार। भाई नेशन की ग्रोथ तो सब कुछ से होगी ना, खाली इससे थोड़ी ना हो जाएगा, राइट? सो गो बैक। बट इसमें बेसिकली क्या था, भारतमाला में अंडरस्टैंडिंग एजम्पशन ये था कि हम लोग जो ट्रेवल टाइम है उसको 40% रिड्यूस कर देंगे और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देंगे। हमने काम भी किया, आई विल कम टू दैट। लेकिन मिडवे
सम अराउंड से 2023 में वी रियलाइज कि अप्रोच उतनी काम नहीं कर रही। लेकिन 1 और 2 से फायदा यह हुआ कि वी लर्न ए लॉट यार, वी लर्न ए लॉट कि प्लानिंग की कैसे जानी है। तो हम लोगों ने उसके बाद हमने कहा नहीं, विल डू होलिस्टिक प्लानिंग। होलिस्टिक प्लानिंग मीन्स हम लोग क्या करेंगे, द रोड का जो इंटीग्रेशन होगा मल्टी मोडल्स होगा, प्लस रोड विल स्पीक टू नियर बाई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे या कोई प्लेसेस जो इम्पोर्टेंस हुआ, कोई LW अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई टूरिस्ट इंपॉर्टेंस का डिस्ट्रिक्ट, उसको भी जोड़ेंगे। और जब प्लानिंग में विल फैक्टर इनटू व्हाट एयरपोर्ट इज डूइंग, व्हाट वाटरवे इज डूइंग, व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इज डूइंग, व्हाट रेलवे इज डूइंग। तो अगर इसको दिखाएं तो क्या होगा, अगेन अब द सेम कोलकाता मुंबई। सो व्हाट यू डूइंग, लोग छत्तीसगढ़ में बिरकौनी है, तो यार यहाँ पर तो ये इंडस्ट्रियल एरिया का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको कनेक्ट करो इससे। अमरावती टूरिस्ट प्लेस है, कनेक्ट करो इसको। यहाँ पर SEZ आ रहे हैं, फिशिंग क्लस्टर आ रहा है, इसको कनेक्ट करो। द विजन हैज टू बी होलिस्टिक। गो बैक प्लीज। नेक्स्ट, तो अब अगर मैं NSDP जो पहला फेज था, अगर उसको मैं कंट्री पे प्लॉट कर दूं तो आपको इस तरह दिखेगा कुछ, राइट। इससे फायदा हुआ, तो हर एक चीज को क्रेडिट दो। इसको क्रेडिट ये हुआ कि इसने जो है ना मेजर इकोनॉमिक नोड्स को कंट्री के उसको कनेक्ट कर दिया। बट इसका नुकसान क्या रहा, नुकसान ये रहा कि यूजर एक्सपीरियंस, 4 लेन से आ रहे हैं 2 लेन, 6 लेन से आ रहे हैं 2 लेन पे आ गए, तो चोक पॉइंट्स बहुत हो गए। नेक्स्ट, नॉट दिस, नेक्स्ट। सो अब भारतमाला आ गई 2017 टू 2022। तो क्या किया, उसमें 6 कॉरिडोर हुआ करते थे गोल्ड GQL। इस समय 2022 आफ्टर मिडवे एग्जीक्यूशन ऑफ भारतमाला फेज 1, 50 कॉरिडोर हो गए हाई स्पीड कंटिन्यू। देन पहले उस समय 2017 में द नेशनल हाईवे यूज्ड टू गार्नर 40% ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री, नाउ इट गार्नर 70%। उस समय 300 डिस्ट्रिक्ट 4 लेन रोड से कनेक्टेड थे, नाउ इट्स 550। नेक्स्ट, सो नाउ लेट मी प्लॉट 1 and 2 ऑन मैप ऑफ इंडिया। तो दिस इज हाउ मैप ऑफ इंडिया में जो आपको हाई स्पीड रोड या कॉरिडोर इस तरह मिलेंगे आफ्टर भारतमाला सिंस 2020 फेज 1। बट अभी भी आप इसमें देखें, अभी भी आप अगर यहाँ देखें इतना सब कुछ बना दिया, लेकिन ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टॉप नॉर्थ ऑफ इंडिया हाई स्पीड रोड नहीं है यार। तो यार इनको भी तो अधिकार है। ये मान लो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, बट डजंट मीन यार कि इनको हाई स्पीड कॉरिडोर्स नहीं मिलेंगे, इनको एक्सप्रेस में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कुछ प्लानिंग में डिफेक्ट है ना। नेक्स्ट, सो इस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट हाई स्पीड कॉरिडोर। हाई स्पीड कॉरिडोर की बात हम क्यों करते हैं यार, अगर आप लखनऊ से अयोध्या जाओ, द डिस्टेंस इज 135 किलोमीटर। दिस इज नॉन एक्सेस कंट्रोल, आपको 4 to 3 आवर्स लग जाते हैं। 6 लेन ले लो, विशाखापट्टनम से श्रीकाकुलम 6 लेन, इट इज 116 किलोमीटर, अरे 2.5 आवर्स। बट मैं अगर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड बना देता हूँ, विच वी मेड अयोध्या टू अहमदाबाद टू वडोदरा 90 किलोमीटर 1 hour 15 minutes। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल फेयर्स बेटर देन 6 लेन नॉन एक्सेस कंट्रोल। इससे फायदा भी है, बिकॉज यू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम, सो यू रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन, यू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट यार। So the development, so transport development, road development is now sustainable and synergic with what the nation needs. So what do you mean by access control? मैं बताता हूँ। Vehicles or no? So what is the 2 टर्म यूज करूंगा मैं, एक्सप्रेस वे और हाई स्पीड कॉरिडोर्स, फिर एक्सेस कंट्रोल ही बताऊंगा इसको। दोनों एक्सप्रेस वे एंड हाई स्पीड कॉरिडोर्स बोथ आर एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स कि उनको उन पॉइंट पर मैं लोगों को एक्सेस दूंगा जहां पर कोई स्टेट हाईवे आ गया, कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आ गया,
या कोई इंपॉर्टेंट प्लेस आ गया, वहां से कनेक्टिंग दूंगा, और वहां कनेक्शन कैसे दूंगा, और बीच में जितने भी और इस तरह के विलेज पड़ेंगे उनको अंडरपास ओवरपास देता रहूंगा। नो, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो स्पीड नहीं आएगी यार, एफिशिएंसी नहीं आएगी यार। तो अभी तक तो बना तो रहा ही था इतने सालों से। अभी हम इसके बाद दिखाऊंगा। देखो यार, भारतमाला के बाद भी 2017 से 2022 भारतमाला एग्जीक्यूट करने के बाद भी देश में ट्रक की स्पीड क्या है यार, 30 to 35 किलोमीटर पर आवर यार। See the developed nations, they are almost 3 times. Mali. So they are 3 times. चाइना 2 गुना, मतलब इसको बनाने के बाद भी। और ये ट्रक का टर्न अराउंड इंडिया में 300 किलोमीटर है। वही ट्रक आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम 700-800 किलोमीटर पर डे चलता है। वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज है। सो एक्सेस कंट्रोल, हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस पे जब भी मैं बात करूंगा दोनों एक ही चीज है, बट हाई स्पीड कंट्रोल जो हाई स्पीड कॉरिडोर है उसमें द टॉप स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। हियर टॉप स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर इन एक्सप्रेस वे। सो इन एक्सप्रेस वे जो लेन होती है, लेन की विड्थ होती है 3.75। हाई स्पीड कॉरिडोर्स में लेन की विड्थ होती है 3.5। नेक्स्ट, तो फिर देन लेट मी कम टू मेन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन कि अब उसको टू ओवरकम किया क्या हम लोगों ने। अब हाउ द नेशन, इसको जो नेशन को अचीव करना है, जो कहा $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है, उसके लिए करेंगे हम लोगों ने प्लानिंग कैसे की। दिस इज वन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वेरी साइंटिफिक। हम लोगों ने क्या किया यार, पूरी कंट्री में जीएसटीएन हो गया, तो जीएसटीएन से वी कल्ड आउट द डाटा फ्रेट मूवमेंट। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा वन बाय वन, बट हियर इज अ ग्लिम्स। और टोल प्लाजा है कंट्री में, फास्ट टैग से आप मूव करते हो, पैसेंजर मूवमेंट मिल गया आपको। तो उससे हम लोगों ने ये देखा कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, मतलब फ्रेट, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, कमोडिटी कहाँ से कहाँ मूव करती है। वी आइडेंटिफाइड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। उसके बाद हमने ये कहा कि भाई ये तो अभी मिल गया, ये नेक्स्ट 25 ईयर्स किस रेट पे ग्रो करेगा, वो उस ग्रोथ को निकाला। 1 और 2 अगर दोनों को मिला लो तो ये मेरी डिमांड आ गई, भाई कितनी मुझे रोड चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड, कंट्री में इस समय कितनी एक्सप्रेसवे बनी हुई है या हाई स्पीड कॉरिडोर, रोड कितना बना हुआ है नेटवर्क, और कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब राज्यों से भी कंसल्टेशन किया, उससे मेरी सप्लाई आ गई। 1 और 2 को मैं जोड़ दूं, डिमांड आ गया, 3 सप्लाई हो गई, 1 + 2 - 3 मेरा ये आ गया कि मेरे कंजेशन कहाँ होंगे। और उसके बाद मॉडलिंग की, आई टेल अबाउट इन डिटेल अबाउट दैट। उससे मुझे आ गया कि मुझे कंट्री का क्या नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क आ गया तो उस नेटवर्क में कौन सी चीज़ पहले बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट, उसको मैं डिटेल में आता हूँ। तो फर्स्ट जो पहले कह रहा था व्हाट इज कि हम लोगों ने क्या किया, डाटा एनालिसिस की। 6.5 करोड़ ई वे बिल्स जीएसटीएन से लिए। इसी तरह जो फास्टैग एनपीसीआई से, फास्टैग से 1.3 करोड़ ट्रांजेक्शन्स ट्रकों के मूवमेंट के, वो एनालाइज की। पैसेंजर मूवमेंट अगेन उसी से आ गया, एनपीसीआई के डाटा से, फास्टैग से। और इस डाटा को हम लोगों ने कंट्री में 5100 प्लेसेस पर ग्राउंड पर टीम लगा के वेरीफाई की, डाटा को कैलकुलेट किया। ऐसा ना हो कि वो जो एजम्पशन है वो हेवायर हो जाए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या किया कि जो 2022 to 2047 तक कैसे फ्रेट मूव करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कंट्री की जीडीपी कैसे मूव करेगी ये बनाया है, ये प्रोजेक्शन दिया है किस रेट पर किस साल की 7% बढ़ेगी, किस साल 6% बढ़ेगी, किस साल 5-7% बढ़ेगी। नीति आयोग क्या करता है, स्टेट की जो स्टेट एसडीपी को नीति आयोग प्रोजेक्ट करता है। तो हम लोगों ने उससे कोरिलेशन ढूंढा कि जो नेशन की जीडीपी और स्टेट की जीडीपी में क्या कोरिलेशन है। स्टेट की जीडीपी का जब कोरिलेशन मिल गया तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में है स्टेट जीडीपी को, लाइक यूपी के डिफरेंट स्टेट क्या, उससे फिर हमने उसको रिग्रेस किया कि डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी क्या होगी। उससे पता ये चल गया कि उस डिस्ट्रिक्ट में मुझे फ्रेट मूवमेंट कितना होगा। और इसके बाद फ्रेट इलास्टिसिटी है, ये कहा जाता है कि अगर
1% GDP बढ़ती है तो फ्रेट 1.07 टाइम रोड पे आ जाता है, लास्टली ऑन द रोड। लेकिन अगर 1% GDP बढ़ जाती है तो रोड पर सिर्फ 40% आता है आदमी। क्यों? कि जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आदमी एयरपोर्ट, एरोप्लेन और इन सब दूसरे मोड में चला जाएगा, तो वो लास्टली वो है। तो उससे जोड़ के मुझे आ गया कि किस तरह से ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या किया कि जो 1.6 हमारा रोड नेटवर्क मिनिस्ट्री का 1.76 लाख करोड़ है, स्टेट एक्सप्रेसवे, इन सबको जोड़ा, उन सब स्टेट से बात की कितनी लेन बना रहे हो, एग्जिस्टिंग ट्रैफिक क्या है, क्या स्पीड है। उसके बाद PM गति शक्ति पर उसको हम लोगों ने लोड किया। नेक्स्ट, अब इससे जब किया तो क्या मिला हमें यार, ये देखो ये मिला कि अगर मैं कुछ ना करूं तो 2027 में ये मैप ऑफ कंट्री है, येलो रेड ब्लू कितनी लेन्स की रिक्वायरमेंट है। 2027 में 44,813 किलोमीटर रोड्स की जरूरत पड़ेगी। उतनी उसमें 2 लेन होंगी, इतनी 4 लेन होगी, इतनी 6 लेन होगी, इतनी 8 लेन होगी। इसी तरह 2047 में आ जाऊं तो 1,32,000 किलोमीटर तो रोड जरूरत होगी, इतने लेन की, इफ आई कीप स्लीपिंग राइट। तो मैं इसकी मॉडलिंग को एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, विल अंडरस्टैंड, कि मैं आगरा मुंबई को लेता हूँ बिकॉज इट्स टू क्लमसी। अब आगरा मुंबई में मुंबई से आगरा चले तो आप देखिए ना 2027 में आप देखें तो जो नासिक के पास जो अर्बन एरिया, नासिक और मुंबई के पास लाल लाल दिख रहा है, रेड, यानी कि ये अर्बन एरिया, यहाँ 6 लेन की जरूरत है। उसके बाद ये हुआ आप मुंबई से इंदौर के बीच में आपको एडिशनल 4 लेन की जरूरत पड़ेगी 2027 में, और उधर आगरा और ग्वालियर के बीच में पड़ेगी। अगर मैं इसी को नेक्स्ट आगे इससे सॉरी 2000 नो गो बैक, यहाँ से कहीं से मूव होगा इसका। अब देखिए 2032 पे आ गए, गो बैक। अब 2032 पे आ गए, आप देखिए ना, तो 2032 पर जब हम आए तो आप देखिए इंदौर से आगे मूव करना शुरू कर गया कंजेशन। आप रीड द कलर्स को इससे मैच कराइएगा। तो क्या हुआ, अब 2037 पे आ गए, 2000 देखिए लाल कितना बढ़ गया, इतनी 6 लेन रोड की जरूरत पड़ेगी यहाँ। वहाँ आगरा और ग्वालियर के बीच में 6 लेन रोड जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट 2042 पे आ गए, रेड एरिया ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ब्लू एरिया और बढ़ता चला गया, यानी वहाँ पर ब्लू एरिया मीन्स आपको एडिशनल 4 लेन की जरूरत होगी, 6 लेन की जरूरत होगी कहीं पर। नेक्स्ट 2047 में पूरा ये हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि मुझे किस समय, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, उस स्ट्रेच में कितने लेन और जोड़ने होंगे। तो जैसे अभी आपने सुना होगा कि 4-5 मंथ्स इन द कैबिनेट आगरा ग्वालियर को उन्होंने 6 लेन एक एक्सप्रेसवे मंजूर करा लिया, क्योंकि 2027 में आप देखेंगे तो आ जाएगा वहाँ पर। तो 2027 में अगर कंजेशन आ जाएगा, अभी से नहीं प्लान करूंगा बिकॉज इट टेक 3 years टू कंस्ट्रक्ट द रोड, सो वी हैव बीट द टाइम ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोगों ने नेटवर्क प्लान को किया। वो है क्या, आपका प्रेजेंटेशन पे गड़बड़ हो रहा है, पीछे चलो, मेन पे आ जाओ। सॉरी टेक्नोलॉजी ये दिक्कत है। नेक्स्ट सो अब यार आपने एक बार वो कर लिया, पूरी कंट्री में नेटवर्क बना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी पता कैसे चलेगा कौन सा पहले आना है कौन सा। अभी यार इससे डेमोक्रेसी, हर आदमी दौड़ कहेगा मेरे यहाँ सड़क बना दो यार, सुनो अरे मनी इज लिमिटेड यार, हर साल का बजट तो 2.5 लाख करोड़ ही मिल रहा है ना मुझे। तो देयर हैज टू बी साइंटिफिक बेसिस यार, यू हैव टू कन्विंस द पॉलिटिकल मास्टर्स एंड एवरीबॉडी यार, ये है। तो व्हाट वी डिड, ऐसा करते हैं, इसको इन सब कॉरिडोर को 100 नंबर पर रैंक करते हैं। 100 नंबर में क्या है कि उससे इनफैक्ट इसके भी सब कंपोनेंट है, अभी दिखाएंगे कि जैसे एफिशिएंसी है उसको 60 नंबर देंगे, अगर रूट से में कितना फ्रेट ले जाता है, कितना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है, मुझे उसकी इकोनॉमिक रिटर्न्स कितनी है, उसको 60 नंबर देंगे। रूट कितने जो है ना इकोनॉमिक नोड्स को जोड़ता है, कितने ट्रांसपोर्ट नोड्स को जोड़ता है, कितने पोर्ट्स को जोड़ता है, उसको 16 नंबर देंगे। और थर्ड इज इनवर्स है, जो कहा ना सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में तो सड़कें नहीं थी ना हाई स्पीड, ऐसे नहीं, इनको रिवर्स वेटेज देंगे यार। जिस राज्य में ग्रिड लेंथ कम है उसको ये बूस्ट अप कर देंगे यार 24 मार्क्स। अगर वहाँ एफिशिएंसी कम है बूस्ट अप कर देंगे यार।
और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, एक्सप्रेसिव डिस्ट्रिक्ट, एलडब्ल्यू को जोड़ना है, बूस्टअप कर देंगे। नेक्स्ट इसका दिखाना है। तो दिस इज हाउ हर एक को, अगर एफिशिएंसी 60 नंबर पे इस तरह 20 वो कर देंगे। गो बैक प्लीज, मेन प्रेजेंट, गो बैक प्लीज। तो अब क्या किया, अब देखो मैं इसको जो है ना पूरे को जो ये नेटवर्क प्लान किया हमने, NSDP, भारतमाला एंड नाउ दिस, जब इसको हमने प्लान किया तो ये देखा कि कंट्री को लगभग 40,000 किलोमीटर और हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे चाहिए। अगर मुझे कंट्री को का ट्रक का टर्नअराउंड टाइम बढ़ाना है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी रिड्यूस करनी है, तो वी सेड कि इसको सीइंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देन बी वेव 1 जिसमें करीब 19,000 किलोमीटर बनाएंगे, वेव 2 20,000 किलोमीटर बनाएंगे और कम और ऐसा लगेगा यार ये फेज 1 भारतमाला फेज 1 जैसी कंप्लीट हो जाएगा, हाई स्पीड कॉरिडोर ये होगा और कंट्री में कहीं भी खड़े रहोगे 300 किलोमीटर में आपको एक हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे मिलेगा। द फेज 1 ऑफ दिस नेटवर्क प्लानिंग विजन के फेज 1 विच इज अराउंड से 2032, वहां तक अगर आप चलेंगे तो आपको 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको लाइक यूपी जहाँ पर 60 किलोमीटर के रेडियस में आप हाई स्पीड कॉरिडोर मिल जाएगा। पोस्ट कंप्लीशन प्रोग्राम वाई, बिकॉज आप देखो ना, हम लोग लगभग 11,000 किलोमीटर सड़कें हर साल बनाते हैं, तो वाई विल वेट फॉर 2047 यार, 2047 तक नेशन कैन नॉट वेट एंड विद आवर स्पीड विल नॉट इट हैपन। हमने ये गवर्नमेंट को कहा हम इसको 10 साल में बना देंगे। 2047 vision will achieve in 2037. So post 2057, this will be the scenario. Every 49 kilometers in UP, 49 kilometers in radius में आपको एक एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। Of course, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, वहाँ भी एक्सप्रेस वे होगी, but because there are 2 spares यार, there are 2 spares, वहाँ पर ये नहीं होगा। But ओवरऑल आपके कंट्री में आप देखेंगे, अराउंड 65-70 किलोमीटर में आपको जहाँ भी रहेंगे एक एक्सप्रेस वे मिल जाएगा और जहाँ भी देश में आप कहीं खड़े होंगे वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की रेडियस, 15 किलोमीटर रेडियस, यू विल गेट ए नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन। It's 12 hours. नेक्स्ट, सो पोस्ट दिस, अब आप देखो द ब्यूटीज, इस समय राइट नाउ टुडे 4300 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड कॉरिडोर है और अगले आई एम रीचिंग 50,000 दिस ईयर ऑनवर्ड्स, हर साल 4,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे। दे हैव मैंडेटेड मी, जितना इंडिपेंडेंट से आज तक एक्सप्रेस वे बनी है उतनी नेक्स्ट ईयर एवरी ईयर भी होगी। सी दैट, कैन यू इमेजिन द मैथ ऑफ स्केल यार। दैट्स व्हाई दे हैव allocated 2.5 लाख करोड़। और जो ट्रक है, ट्रक का मूवमेंट का जो वो है वही ले जाएंगे। नेक्स्ट, सो इन द कमिटी ऑफ नेशंस यार, अगर दुनिया में अपने आप को देखें, इंडिया इज स्पेशल कंट्री यार, तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, लोएस्ट क्वाड्रेंट पे, सो फॉर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन पोस्ट दिस विजन इन 2037 विल बी हियर वन ऑफ द बेस्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, सो इसमें क्या होगा, प्राइमरली अराउंड 40,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर जोड़ेंगे, बट इसके अदर कंपोनेंट्स भी इसके साथ साथ around 6,000 to, I'll come one by one to each, 6,500 kilometers of spurs, I told you about the Birkoni and that Amravati, वो बनाएंगे। पोर्ट्स और कोस्टल एरिया को भी 3,000 किलोमीटर कनेक्ट करेंगे। जो अर्बन, बहुत सारी हमारी हाईवेज जो निकलती है सिटी से, अर्बन एरिया से, और वो डिकंजेस्ट हो गया, वो कंजेस्टेड हो गए, so we have to we'll decongest them, we'll make ring road or bypasses or elevated road in that portion, so that around 5,000 kilometers, and finally this 3,100 kilometers of road, ये किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर पर पास नहीं होंगी, किसी भी टेस्ट पे पास नहीं होंगी। अगर मैं इसमें इकोनॉमिक्स लगा दूंगा, अगर आप उस जैसलमेर में मैं रोड बना रहा हूँ, अगर आप ये कहें कि भाई इससे रिटर्न कितना मिलेगा मुझे, इस पर
ट्रैफिक कितना मूव करेगा, ये बात बेमानी है, यू कैन नॉट, बिकॉज दैट्स फॉर तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे सेड दैट यू वांट रोड to these strategic areas. They say yes, we will make road. We will not look into. We will cross subsidize it from somewhere else. We will make roads to. Yes. So now I will come on by one. So the spurs. So what will do? Phase one roughly around 15%. अगर आप देखेंगे 15% is spur means जो main corridor से link. So we are to economic places, to tourist places, to transport hubs, around 3,400, 3,000, 6,500 will make. Of course, this while will be making this in consultation with the state governments. वहाँ के राज्य से पूछेंगे कि आपकी जरूरत क्या है. In that and of course LPG will cover next. So like अगर मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे हुआ, what is पर, so बड़ौदा से मुंबई हम लोग बना, दिल्ली मुंबई बना रहे हैं हम लोग. तो दिल्ली मुंबई में it what we thought, यार वो जेवर एयरपोर्ट आने लगा है, why not let's give a spur to जेवर एयरपोर्ट, because so that जेवर एयरपोर्ट gets connected to दिल्ली एयरपोर्ट. जेवर एयरपोर्ट से किसी को जयपुर जाना है, वडोदरा जाना है, मुंबई जाना है, why not that. सिमिलरली कोटपुतली अलवरा है, उसको लिंक कर दिया, जयपुर मेन तो वहाँ से बांदीकुई को लिंक दे दिया. सो दिस इज व्हाट स्टेट डिमांडेड. देन इट स्टूड द टेस्ट ऑफ यू नो what importance of the area है. अगर टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के लिए बहुत एरिया है हो गया तब दे देंगे, या वहाँ कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर आ रहा है तो दे देंगे. नेक्स्ट एंड यू नो वी कंसल्टेड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट. यू नो लॉट्स ऑफ द डेवलप्ड नेशन दे ट्रांसपोर्ट लॉट्स ऑफ देयर गुड थ्रू यू नो पोर्ट्स, बिकॉज पोर्ट से मूवमेंट इकोनॉमिकली बहुत वायबल और बहुत एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है. सो व्हाट दे आर प्लानिंग बाई 2047 जो पोर्ट की कैपेसिटी 4 टाइम्स कर देंगे यार, 10,000 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ पर एनम फ्रेट मूव करेगा. सो वी आर गियरिंग अप दैट, क्योंकि वो तो पोर्ट कैनॉट बी इन साइलो ना. सो व्हाट वी डिसाइडेड, हर पोर्ट के 25 किलोमीटर के अंदर जो सड़कें होंगी उसको डिपेंडिंग ऑन द फ्रेट इट टेक्स, नेक्स्ट उसको हम लोग 4 लेन एक्सेस कंट्रोल 2 लेन. तो आप देखें इसमें देयर आर 89 ऑपरेशनल पोर्ट इन द कंट्री, सम आर मेजर पोर्ट, सम आर माइनर पोर्ट्स. उनको हम लोग 4 लेन डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, 2 लेन विद पेव शोल्डर, 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रूट्स हम लोग करेक्ट करते हैं पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट, सो दिस इज व्हाट द कंट्री में 5 लाख प्लस सिटीज जो हैं 94 है. 94 में 3 के अराउंड कंजेशन नहीं है हमारा. 19 में वर्क इज गोइंग ऑन फॉर डिकंजेशन. For next 72 will either ring road or bypasses or you know elevated corridor as a part of this program will be. Next, so similarly in border areas in the internal Bangladesh, Bhutan, Nepal, in these countries also we will give the connectivity from our country depending on what the Ministry of Defence how it desires. We have provision for it. Next. अब नेटवर्क बन गया, अब उसके अंदर कॉरिडोर कैसे बनता है. नेटवर्क में जो तो पूरी कंट्री का 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क बन गया. अब मुझे जो है एक कॉरिडोर बनाना है, सपोज पुणे बेंगलोर कॉरिडोर बनाना है. कॉरिडोर कैसे बनेगा, कॉरिडोर कैसे बताओ, हाउ उस कॉरिडोर बनाने में एफिशिएंसी कैसे आएगी. तो यहाँ पर पीएम गति शक्ति इस्तेमाल आता है. पीएम गति शक्ति क्या है, समझिए रोज अदर लैंड में गिव एक वेग आइडिया. पीएम गति शक्ति जो पोर्टल उस पर क्या होता है, जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अपने लैंड के डाटा कहाँ कहाँ लैंड है क्या है वो उस पर होस्ट कर रखा है. रेलवेज ने उनकी रेलवे लाइन कहाँ कहाँ है और क्या क्या अपकमिंग है होस्ट कर रखा है. एयरपोर्ट ने अपना एयरपोर्ट का दे रखा है. फॉरेस्ट ने अपने फॉरेस्ट उस पर लोड कर रखे हैं. इको सेंसिटिव जोन्स कर रखा है. इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ने अपना वाटर वे कर रखा है इसको. पीजीसीएल पावर मिनिस्ट्री ने कहाँ कहाँ से उनकी लाइन जाती है जाएंगी वो कर रखा है, यानी उस पोर्टल पर है. तो उस पोर्टल को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, उस पोर्टल पे अपने रूट को डाल दिया, अलाइनमेंट को डाल दिया. मैं इसको आई टेक यू थ्रू एग्जांपल यार तो समझ में आएगा. पुणे बेंगलुरु हम लोग बना रहे थे. नेक्स्ट, पुणे बेंगलुरु हम लोग बना रहे थे तो ऐसे कि तो इससे हमें फ़ायदा कैसे मिला. तो पुणे बेंगलुरु का यस तो पुणे बेंगलुरु को जब पुणे व्हेन वी आर प्लानिंग पुणे बेंगलुरु
देयर वर सो मेनी, अगर मैं इस पोर्टल पर नहीं डालता, पीएम गति शक्ति को यूज नहीं करता, आई वुड हैव गॉट टू नो कि वहां पर 55 SEZ आ रहे हैं, 8 फार्मास्यूटिकल, 3 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आ रहे हैं, 9 रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, 3 एयरपोर्ट आ रहे हैं. तो what we tried, because I plotted, I got to know that here it is, so my alignment has to pass in a way that इनसे मैं, मेरा जो कनेक्शन कॉस्ट है, इसके क्लस्टर्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो कॉस्ट मेरी कम से कम हो गया. देन उसके बाद क्या किया, जब इसको पूरे बेंगलुरु को बना रहे थे, यार आपने हमेशा सुना होगा कि रोड जैसी बनी उसके 2-3 महीने बाद खोदना शुरू कर देते हैं. वो तार वाला आएगा, तार खोदेगा, दूसरा वाला आएगा, पाइपलाइन वाला पाइपलाइन खोदेगा. सो व्हाट वी सेड कि इससे यार, इससे निजात पाते हैं. सो हाउ डू दैट, आई सेड कि यार, यस लिखे, आई सेड कि जब रोड के इसके लिए बना रहा हूं मैं, तो मैं एंड में ही ab initio let me acquire the land in my right of way, so that at the extreme left I have provision for, if they want to put an optical fiber put it, they want to any उससे utility corridor ले जाते हैं, ले जाए इसको. तो ab initio I have provision. अभी हम लोग अहमदाबाद धुलेरा बना रहे हैं, तो अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो रेलवे अप्रोच, रेलवे सेट कि भाई आप बना ही रहे हो, व्हाई नॉट अपने राइट ऑफ वे में थोड़ी लैंड हमारे लिए एक्वायर कर दो, हमारी रेलवे पैनल चली जाएगी. यस यस. तो दिस कुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू पीएम गति शक्ति. गो बैक. थर्ड, इसका बहुत फायदा क्या है, व्हेन आई प्लॉटेड दिस अलाइनमेंट ऑन पीएम गति शक्ति, इसने मुझे क्या बताया, इसने बताया कि आपका अलाइनमेंट 15 जगह नेशनल और अदर नेशनल हाईवेज को क्रॉस करेगा, 6 जगह रेलवे को क्रॉस करेगा, 25 जगह स्टेट हाईवे को क्रॉस करेगा, इतना फॉरेस्ट एरिया आएगा, इतनी हाई टेंशन. तो एब इनिशियो आई गॉट टू नो कि मेरा अलाइनमेंट यहाँ से पास करेगा. तो क्या होगा, शुरू में ही मैंने इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया, शुरू में ही इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया, भाई मुझे क्लियरेंस दे दो, ताकि जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज होता है करने के लिए, उसके पहले मेरे क्लियरेंस इन प्लेस हो. नेक्स्ट, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, यार आप लोग वो हैं, आई एम सॉरी इफ एनीबडी इज फ्रॉम योर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि रोड बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज 2 है. फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेना, बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्यूरोक्रेट, बेस्ट जो रोज लगा रहेगा उसको भी 1.5 साल लग जाते हैं लेने के लिए. और दूसरा रेलवे, आई एम सॉरी रेलवे से, रेलवे की जीएडी परमिशन अगर 2 साल से पहले कोई हो जाए तो उसको तो वो देश का रिकॉर्ड बन जाए. मतलब हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत इन जगह से है, सिंगल विंडो पोर्टल बना दिया, सब कुछ बना दिया, बट यार तो क्या हुआ कि अब वोट भी कि जब इस अलाइनमेंट को, ओरिजिनल अलाइनमेंट हमारा ये था, सोचा था हमने जो रेड कलर में, अगर रेड कलर से जाता तो मेरा इतना जो है ना इकोसिस्टम जोन फॉरेस्ट एरिया चला जाता, और मुझे इसकी क्लियरेंसेस मिलने में बहुत देर लगती. प्लस वी डू नॉट हैव अ राइट यार, वी डू नॉट हैव अ राइट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. हम लोग यार जो फॉरेस्ट के जो पेड़ पर जानवरों हैं उनके हैबिटेट को हम डिस्टर्ब करें. एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी दैट वी शुड अवॉइड इट यार, इवन इफ इट कॉस्ट अ बिट यार. देखो यार, सबको ईश्वर ने सबको इस दुनिया में सबको एक साथ कोएग्जिस्ट करने का अधिकार दिया. जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमंस वी कैनॉट यार उनके हैबिटेट को जाने हम करने. तो इससे हम लोगों ने ये अलाइनमेंट वो किया, इससे मेरा ये सेव हुआ. नेक्स्ट, कॉरिडोर बन गया, लेट अस अज्यूम कि रोड बन गया. थोड़ी देर लेट अस कम टू द रोड, एक रोड बन गई है. अब रोड बन गई है, अब रोड पर आप यू आर ट्रेवलिंग ऑन द रोड, सो व्हाट विल एक्सपेक्ट यार, 100 की स्पीड पे जा रहे हो, और जो टोल प्लाजा है यार उस पर 4 मिनट 5 मिनट रुक गए यार, नो ट्रक रुक गया, मेरी लॉजिस्टिक चली गई यार. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग टोलिंग टेक्नोलॉजीज को, अभी आप देखते हैं टोल प्लाजा बंद रहता है और फास्टैग से पैसा कट जाता है ना. इस दिल्ली देहरादून अभी 26 जनवरी में खोल देंगे इस बार. अभी दिल्ली देहरादून पे हमारा जो वो होगा बैरियर जो है ना, इट विल बी अप पोजीशन, आप थ्रू निकलोगे, अगर कोई बहुत फास्टैग आपका नहीं तभी गिरेगा.
otherwise we will keep on moving. दूसरा, वी आर गोइंग टू व्हाट हम लोगों ने क्या किया, पूरी कंट्री की जितनी भी हाईवे हैं उस हाईवे को जियो फेंस कर दिया, हाईवे ±5 मीटर्स। दिस ईयर कंट्री में 5000 किलोमीटर पर, अगली साल 25,000 किलोमीटर पर, थर्ड ईयर पूरी कंट्री में हम लोग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से टोलिंग करने जा रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी गाड़ी में एक ओबीयू फिटेड रहेगा। जितनी गाड़ियाँ बनेंगी दे हैव बीन मैंडेटेड के ओबीयू फिट कर देंगे वो आपकी जो नई गाड़ी खरीदेंगे, और जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसमें आप डिफरेंट सेंटर पर, जैसे आप पहले आप फास्टैग आप लेते थे ऐसे वो रहेगा, एंड दे विल फिट द ओबीयू। और द मोमेंट यू एंटर अवर हाईवे देयर बी नो टोल प्लाजा, नो बैरियर। द मोमेंट यू एंटर अवर हाईवे सैटेलाइट से आपका मीटर शुरू हो जाएगा, और द मोमेंट यू एग्जिट यानी जितना चलेंगे उतना आपसे ले लेगा और कहीं पर रुकना नहीं पड़ेगा। दिस वी हैव पायलटेड, इट हैज बीन सक्सेसफुल इन द कंट्री, and this year 5,000 kilometer, and next 3 years everywhere in the country. And tomorrow I guess Prakash is coming, he will tell in detail about wayside amenity. Every 40-50 kilometers जब आप रोड पर चलेंगे वर्ल्ड क्लास wayside amenity हम लोग बना कर देंगे, आप you enjoy it. Then अगर इतना यार हाईवे हम लोग बना रहे हैं 11,000 किलोमीटर हर साल बना रहे हैं, 1.5 लाख किलोमीटर 1.50 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है हमारे पास, तो जब तक यार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम लोग वी क्रॉट यार ट्रस्ट मी, सुबह से शाम 24/7 365, जैसे किसान को आपने देखा है ना, पूरे तीनों सीजन उसमें जुटा रहता है, उसको दुनिया पता ही नहीं चलता। ऐसे हम लोगों को पता, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे जितने भी ऑफिसर्स नीचे यार कब दिन होती कब रात होती पता नहीं चलता यार, इतनी रोड बनवा रहे हैं हम लोगों से लोग, मतलब यार सो मच इनटू इट यार। तो अगर इतनी रोड नहीं बनानी है मुझे, अगर मैं ONM के लिए टेक्नोलॉजीज नहीं लाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं करूंगा, तो मैं उसमें भिड़ा रहूंगा, रोड कब बनाऊंगा। सो वी आर 4-5 थिंग्स वी हैव स्टार्टेड, 1 by 1 2 मिनट वीडियोस दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। As I told you, this Prakash will tell. Next. Yes. So 2 मिनट ये कैसे हम लोग जो है ना मेंटेनेंस में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। NHAI द्वारा बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अथॉरिटी इंजीनियर टीम के सदस्यों की अटेंडेंस ट्रैकिंग को सुनिश्चित करने के लिए 2021 में मोबाइल ऐप के उपयोग की शुरुआत की गई। यह वो समय था जब कोविड प्रोटोकॉल के कारण साइट पर इंजीनियरों के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं था। अथॉरिटी इंजीनियर इस ऐप के उपयोग से अपनी अटेंडेंस संबंधित प्रोजेक्ट पर आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक माह सिस्टम द्वारा एक ही उपस्थिति रजिस्टर स्वयं तैयार हो जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। देश भर में NHAI प्रोजेक्ट्स पर 5,000 से अधिक इंजीनियर इस ऐप का उपयोग प्रतिदिन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार किसी भी परियोजना पर किसी भी इंजीनियर का वर्तमान में या पूर्व नियुक्ति रिकॉर्ड आसानी से जांचा जा सकता है। इस मोबाइल ऐप की सफलता के बाद राजमार्ग परियोजनाओं में डिफेक्ट मैनेजमेंट की ट्रैकिंग में प्रयोग की शुरुआत की गई। NHAI ने सितंबर 2022 में तत्पर ऐप के रूप में इसे लॉन्च किया था, जिसका उद्घाटन बेंगलुरु में आयोजित समारोह में माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने किया था। यह मॉड्यूल सभी ठेकेदारों और इंजीनियरों को राजमार्गों पर रखरखाव संबंधी मुद्दों को रिपोर्ट करने और उसके हल करने तक निगरानी हेतु सुविधा प्रदान करता है। तत्पर ऐप में 3 मुख्य विशेषताएं हैं जो इसकी उपयोगिता को बढ़ाती हैं। जैसे कि ये जियो टैग की गई तस्वीरों के साथ डिफेक्ट्स को कैप्चर करता है, जिससे डिफेक्ट्स को आसानी से लोकेट किया जा सके। दर्ज किए डिफेक्ट्स के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट अनुसार एक ऑटोमेटिक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वर्तमान में उन सभी मामलों में जहां ठेकेदारों की ओर से डिफेक्ट्स का समाधान लंबित है, ठेकेदारों के बिलों की प्रोसेसिंग के समय उचित कटौती की ऑटोमेटिक अनुशंसा की जाती है। पिछले केवल 9 महीनों में ही 300 से अधिक EPC, आइटम रेट और हैम प्रोजेक्ट्स में इस ऐप का सफल प्रयोग किया जा चुका है। एक ही इंजीनियर टीमों ने 500 से अधिक मासिक रखरखाव निरीक्षण पूरे किए हैं और ठेकेदारों ने लगभग 10,000 डिफेक्ट्स को ठीक किया है। ऐप के विस्तृत दायरे जैसे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हाईवे मेंटेनेंस, RFI, रोड सेफ्टी ऑडिट इत्यादि को देखते हुए NHAI के सभी आंतरिक स्टेक होल्डर्स की आवश्यकताओं को एक ही प्लेटफॉर्म में पूरा करने के लिए NHAI One लॉन्च किया जा रहा है। NHAI One ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है।
किसी भी राजमार्ग निर्माण परियोजना में RFI सबसे अधिक दोहराव वाली गतिविधि है। ठेकेदारों को रोज RFI फॉर्म्स जांच और अनुमोदन के लिए इंजीनियर के पास जमा करने की आवश्यकता होती है। ये पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होने के कारण इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, जैसे बैकडेटेड एंट्री बनाना और जानकारी को एडिट करना। इसके अलावा चूंकि RFI सबमिशन की कोई वास्तविक समय की निगरानी नहीं है, इसलिए साइट पर कोई भी अनैतिक कार्य का पता नहीं चल सकता है। अब इस जटिल प्रक्रिया को डिजिटाइज करके सभी RFI को जारी करने से लेकर उनके निष्पादन तक व्यवस्थित रूप से ट्रैक किया जा सकेगा। यह एक पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने में एक प्रमुख माइलस्टोन साबित होगा। ये देखना बहुत आसान होगा कि एक निश्चित समय सीमा में कितने RFI प्रस्तुत किए गए, कार्य की गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए कितनों का निपटान किया गया और कितनों को अस्वीकार कर दिया गया। इसे 2 सप्ताह के पायलट प्रोजेक्ट में 15 मई 2023 से देश भर में 34 परियोजनाओं में चालू किया गया है, जिसमें बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। इसके आउटपुट को भविष्य में अथॉरिटी इंजीनियर के डिजिटल MPR में ऑटोमेटिकली सम्मिलित किया जा सकेगा, जिससे MPR बनाने में समय की बचत होगी और यथार्थता भी बढ़ेगी। इस ऐप का उपयोग करके राजमार्गों पर गंदे शौचालयों की समस्या की निगरानी के लिए प्रभावकारी समाधान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। टोल प्लाजा एजेंसीज को निर्देश दिया गया है कि एक बेसलाइन सर्वे के बाद वे शौचालयों की प्रतिदिन सफाई के बाद उनकी तस्वीरें ऐप पर अपलोड करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से इन इमेजेस को स्वच्छ और अस्वच्छ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस मॉड्यूल को दिल्ली और गुजरात के क्षेत्रीय कार्यालय में पायलट किया गया था और हमें 35 से अधिक टोल प्लाजा से 400 से अधिक टॉयलेट इमेजेस प्राप्त हुई है, जिनसे मशीन लर्निंग मॉडल को सफलतापूर्वक ट्रेन किया जा रहा है। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए राजमार्गों पर सभी स्टेजेस जैसे डिजाइन, निर्माण, संचालन इत्यादि के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य हो गया है। अभी रोड सेफ्टी ऑडिट फिजिकल मोड में किया जा रहा था तथा ऑडिट पूरा हुआ या नहीं, या सुरक्षा मुद्दों को संबोधित किया गया है या नहीं, ऐसी निगरानी के लिए कोई ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं था। NHAI में टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोड सेफ्टी ऑडिट प्रक्रिया IRCSP 88 के अनुसार डिजाइन किया है। ये डिजाइन से लेकर O&M तक सभी ऑडिट चरणों को कवर करता है। सेफ्टी ऑडिट के दौरान ऑडिटर्स परियोजना स्थल पर अपने स्मार्टफोन सेकंड इज व्हाट दिस इज NSV क्या होता है? जैसे हम लोग एक्सरे कराते हैं ना, अपना एक्सरे अपना पूरा 3D स्कैन करता है बॉडी का। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, कंट्री में, दुनिया में 3D मशीनें अवेलेबल थी जो कि उसको 3D इमेजिंग कर देती है रोड पर कि रोड की हेल्थ क्या है। सो वी ईयर बैक हम लोगों ने इसको मतलब वी कंसल्टेड द बेस्ट प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम लोगों ने इसको लॉन्च किया और इसको हम लोग नाउ अब रोड्स की जो रोड है उसकी हेल्थ को मॉनिटर करते हुए बताते हैं। इसको रफली जरा जल्दी मूव करके दिखा दें। आई गॉट टाइम ना अभी? यस सर। है ना? भारत के निर्माण में देश की सड़कों का एक अहम योगदान है। हमारी प्रगति हमारी सड़कों की अवस्था से जुड़ी हुई है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के इस सपने को पूरा करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। NHAI के नए इनिशिएटिव डैम्स यानी ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम में ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सारे हाईवेज के 3D मैप बन रहे हैं, जिन पे AI की मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि कितने किलोमीटर नई सड़कें बन चुकी है अंडर कंस्ट्रक्शन में। लेयर वाइज मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सड़कों की अवस्था कैसी है, O&M के लिए सड़कों में क्रैक्स, पॉटहोल्स जैसे डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। हमारे हाईवेज में मीडियन और एवेन्यू में कितने पेड़ हैं, कहाँ हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है और स्वास्थ्य कैसा है, और आखिरकार सड़कों पे नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर, लेन मार्किंग्स जैसे रोड सेफ्टी के लिए किए गए प्रावधान कैसे आजमाए हैं। यह सब एनालिसिस की जाती है और एक स्पेशियो टेम्पोरल डेटाबेस में सेव करके राष्ट्र की सड़कों के बारे में एक परम सत्या का प्रमाण बनाया जा रहा है। हर महीने अंडर कंस्ट्रक्शन और हर 6 महीने में O&M वाली सड़कों को एनालाइज किया जाएगा। ये रिपोर्ट्स हमारी रोजमर्रा में की जाने वाली जांच पड़ताल का भी हिस्सा बनाई जा रही है। इस सहूलियत के लिए डैम्स में स्ट्रिप चार्ट्स और PDF रिपोर्ट्स और NHAI-1 मोबाइल ऐप से इंटीग्रेशन का भी साधन दिया गया है। NHAI के सभी लोग, कॉन्ट्रैक्टर, AE, RO, PD, हेडक्वार्टर एक्सेट्रा सभी के पास इसके एक्सेस रहे। ड्रोन्स और AI जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके NHAI
आय विश्वासघात के हाईवेज बनाने में भारत भी अपना योगदान करेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया केवल सड़कें ही नहीं। जब इसको वो एनएससी वाले को नहीं दिखाया उसमें एक्चुअली क्या, जब हम लोग इसको एनालिटिक्स कर रहे थे तो हम लोगों ने इसको जो है ना पूरी कंट्री में इन्होंने ग्लोबल टेंडर किया। टीसीएस नहीं कर पाया इस एनालिटिक्स को, इन्फोसिस नहीं कर पाई पूरी टीम, एचसीएल नहीं कर पाया, टेक महिंद्रा नहीं कर पाया, 2 स्टार्टअप लड़कों ने काम कर दिया पूरी मतलब 2 स्टार्टअप लड़कों ने ये इसकी और इस एनालिटिक्स को दुनिया में जहाँ हम दिखाते हैं वर्ल्ड ओवर। अब उन 2 लड़कों का वैल्यूएशन की लिमिट नहीं है। They did it for us and this is NSP इसको शायद इसका वीडियो स्किप कर दिया दिखा रहा है। नो गो बैक है नहीं है एक्चुअली वीडियो भी डेटेड है तो पुराना बना हुआ था ऑफ द 2023 की बात कर रहा है। राइट नाउ बहुत सारे वो नया लोड नहीं हुआ। नेक्स्ट इसी तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट ऑन द ऑल हाईवेज वी आर सो दैट वी टू योर सेफ्टी एवरीथिंग वी कीप ऑन मॉनिटरिंग फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। नेक्स्ट अब यार अब इसकी बात आते हैं मेन बात कि इस 60,000 किलोमीटर को बनाने में 55 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, राइट। और पैसा उन्होंने कितना दिया है 32 लाख करोड़, उसमें से खर्च भी हो गया यू नो बिकॉज इट वॉज फ्रॉम वेल दिस मनी विल कम। सरकार तो पैसे नहीं देने जा रही ना, गवर्नमेंट के लिए रेलवे ऑल्सो भी है, डिफेंस भी है, दुनिया है यार। सो हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट मैंडेटेड कि भाई आप यू थिंक ऑफ इनोवेटिव मीन्स एंड मेजर्स टू गार्नर द मनी। तो हम लोग क्या करते हैं, रोड्स के डिफरेंट मोड हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, पब्लिक प्राइवेट। आई कम 1 by 1 टोल कलेक्शन एंड मोनेटाइज रोड। अगर शुद्ध भाषा में कहें हम रोड को बेच देते हैं एंड हम बहुत राज्यों से भी कहते हैं कि इफ यू आर पुटिंग योर मनी, देयर आर मेनी स्टेट्स हु आर डेवलपिंग एक्सप्रेसवे, यू लर्न फ्रॉम अस यार, यू गेट वैल्यू फॉर मनी। आदमी को अगर अच्छी सड़क दे दो तो उसको टोल देने से मना नहीं करता। राइट नाउ अवर फास्ट टैग पेनिट्रेशन इज अराउंड 99%। एवरीबडी सिटिंग ओवर हियर, एवरीबडी आप अभी पिछले कुछ सालों से दे रहे, इस पर कभी नहीं होता कि टोल नहीं देंगे, इस पर कभी वो नहीं होता। ये बात है कि लोकली कभी एजिटेशन होता है तो किसान आ जाता है कि भाई हम लोग टोल पर टू सो हिज रिजेंटमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट किसी और इशू पर कि पैडी प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो टोल पे आके जाम लगा देगा। बट नेशन एज ए होल इज नाउ इनटू हैबिट ऑफ पेइंग द टोल प्रोवाइडेड गुड रोड्स। तो हम लोग तो रोड से बहुत पैसा बना रहे हैं, शुद्ध बात हम बता रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। नेक्स्ट सो व्हाट वी आर डूइंग यार कि जो रोड हम लोग बना रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वी आर इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन बिग वे। यानी कि हम लोग तो सिर्फ 40% देते हैं पैसा, 60% जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद लाता है। ही ब्रिंग्स इन 60%, उसमें वो बैंक से कुछ अपना इक्विटी लगाता है, कुछ बैंक से लाता है। और अगर इसका नेक्स्ट अब तो हमने सोचा कैसे है यू नो हर साल जो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है उसका क्लोज टू यू नो 30 to 40% प्राइवेट उससे लेंगे। सरकार से बजट में इतना ही लेंगे, इतना ही लेंगे कि सरकार इतना ही देगी यार, लेंगे अगर ज़्यादा दे देगी तो हम आई बी मोस्ट हैप्पी पर्सन यार। बट वी नो वी हैव बीन इंडिकेटेड कि भाई आपको पैसे का जुगाड़ करना है, सो वी दिस इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट जो टोल से हमको हर साल इस समय लगभग अराउंड 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए पर डे टोल से मिलता है। तो दिस इज हाउ कैन डू थ्रू प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट सेट कि आप अपनी रोड को मोनेटाइज करो एंड दे सेड योर टारगेट इज 1.60 लाख करोड़। 1.1 लाख करोड़ हम लोगों ने मोनेटाइज कर दिया, इस साल 50,000 करोड़ का मोनेटाइज करेंगे, राइट। और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो रोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कैनेडियन पेंशन फंड, ऑडिटोरियो टेंचर, सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इंडिया की जो वो हैं बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, LICs हैं, दे आर द वन हु आर इन्वेस्टिंग इन अवर रोड्स। नेक्स्ट कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, दैट वन मोर अप फ्रंट हमने रोड को कहा कि भाई मैं आपको टोलिंग राइट देता हूँ 20 से 30 साल, मुझे यू गिव। जैसे दिल्ली मेरठ को भी हमने 20 साल के लिए वी सोल्ड इट, द क्रूड वर्ड इज वी सोल्ड इट, ही गेव अस से 12,000 करोड़ रुपीज।
आई सेड कि इसके साथ साथ 20 साल आप रोड को मेंटेन भी करोगे आप, राइट? मतलब मेरा नहीं, इट इज ऑल योर बेबी। अपफ्रंट पैसा मुझे दो, टोलिंग मैंने राइट आपको दी। लेकिन एक दूसरा भी मोड होता है, लाइक यू नो रोड इज ए ग्रोइंग सेक्टर, यू आर नॉट इनटू रोड्स यार, यू हैव मनी, आप चाहते हो कि यार मुझे अच्छा रिटर्न मिले, मुझे रोड के बारे में यार, मुझे रोड मेंटेनेंस क्या मतलब, मुझे टोलिंग क्या मतलब, मैं पैसा लगा दूंगा, मुझे उससे जो है ना रिटर्न मिलता है। तो हम लोगों ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट खोल दिया है NHAI का, NHAI इसका स्पॉन्सर हो गया, राइट? और उस ट्रस्ट में एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर बना लिया, मार्केट से आई गिव हिम 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, 10 लाख रुपए पे हायर किया मैंने इंटरव्यू। आई सेड कि तुम मेरे लिए पैसा इकट्ठा करोगे, यू विल टेल माई स्टोरी टू एवरीबडी द इन्वेस्टर्स कि भाई रोड इज सच ए ग्रोइंग सेक्टर, यू इन्वेस्ट मनी इन दैट। और अपना ही एक SPV खोल दिया जो कि इस रोड को मेंटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस साल अभी तक लगभग 26,000 करोड़ रुपए मिले हैं, इस साल उससे 20,000 करोड़ रुपए हम लोग उस रोड को कर देंगे। थर्ड, बिकॉज NHAI ओवर द ईयर्स NHAI ने काम करके अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, तो वी आर AAA रेटेड। सो व्हाट वी डिड, जब दिल्ली मुंबई बना रहे थे, वी वांटेड टू टेस्ट अवरसेल्फ। इसे कि यार हमें बनाने में इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए चाहिए, यू गिव अस द मनी, और कोई गारंटी नहीं देंगे, मतलब वी विल नॉट गारंटी, मतलब जैसे वन यू कभी वो करते हैं तो बैंक क्या करता है, कोलेटरल मांगता है, या बैंक कहता है कि नो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री या सोवरिन सरकार की गारंटी दो, दिस विल नॉट, बिकॉज वी आर ट्रिपल रेटेड, अगर आपको पैसा देना है तो आप ट्रस्ट मी। बैंक जैसे होता है ना, पहले दिन मार्केट खुलता है, बैंक आके गिर पड़ते हैं, सो मेनी बैंकर्स की, कोई कह रहा 8%, कोई कह रहा 8.25% पे आप लोग 40,000 करोड़ फ्रॉम देम। और किस पे दिया, इस पे फ्यूचर टोल रेवेन्यू, फ्यूचर टोल रेवेन्यू पे के बेसिस पर उनका हमने ये सेट कि टोल रेवेन्यू, दे नो दैट नेशन इज हैबिट ऑफ पेइंग द टोल टैक्स, तो इससे उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो दिस प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग, तो जो बड़े बड़े कॉरिडोर है इस पर मिल चलेगा। नेक्स्ट, तो ब्रॉडली इसके टेकअवेज क्या है? टेकअवेज ये है कि फ्यूचर हैज टू बी होलिस्टिक प्लानिंग, हाई स्पीड कॉरिडोर, यू हैव टू यूज PM गति शक्ति पोर्टल लाइक दैट, सो दैट आपका प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड स्पीड है। थर्ड, आपको टोलिंग में एंड इन द मेंटेनेंस you have to use advanced and IT technologies. Yeah, but it is not so rosy, my friend. It is not, constructing a road is not so rosy. दस जूते घुस जाते हैं यार। अभी भी यहाँ से जब जाऊँगा यार, तो नीचे मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM उत्तराखंड, उनके DGP, इन सबको बुला रखा है। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ रोड मैं बना रहा हूँ, बनाना बंद कर दूंगा अगर मुझे क्लियरेंस नहीं दोगे। तो अभी मतलब एवरी मिनट फॉर अस यार, जमीन की लैंड, यार लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट, उनके क्या है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ पास क्या है, अपने स्टेट के भी उसको लैंड एक्वायर करनी है, मेरी भी करनी है। अब वो स्टेट का कलेक्टर के अंदर है वो, हालांकि मैं डेडिकेटेड उसको पैसा देता हूँ, अलग से पैसा देता हूँ फॉर दिस लैंड एक्विजिशन। जो लैंड एक्विजिशन का ऑफिसर पूरी यूनिट का पैसा NHAI देती है उनके काम करने के लिए भी, लेकिन क्योंकि कलेक्टर की स्टिक होती है तो उनका काम पहले करता है, मेरा काम यार शुरू कर देता है। और दूसरा क्या है कि वो कई जगह ऑफिसर से बहुत दिनों में वो नहीं पहुंच सकते। फॉरेस्ट क्लियरेंस आई टोल्ड यू, टोल कलेक्शन यार कभी भी कोई दिक्कत आती है, जैसी भी कोई किसी को भी नाराजगी हुई तो सबसे पहले हमारा टोल प्लाजा होता है। अब उसका नुकसान क्या है, क्योंकि फॉरेन देखो यार देश है तो ठीक है, चलो देश में हम लोग जानते हैं, वी नो द सिचुएशन ऑफ द कंट्री यार, कि लोकल आउटबर्स्ट है रोक लिया, बट यार मुझे तो पैसा फॉरेनर से भी दे रखा है ना यार, फॉरेन फंड से भी पैसे दे रखा है, और वहां तक चले जाता है, हो क्या रहा है तुम्हारे यहाँ। दूसरा है कि बहुत सारे स्टेट कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगाते रहते हैं। दूसरा क्या है, रोड बनाने के लिए मिट्टी की परमिशन चाहिए, अर्थ, उस परमिशन को लेने के लिए कंसेशनर और हमारे PDO को बहुत पापड़ डालने पड़ते हैं। अगर देंगे तो 2 महीने के देंगे। NHAI है, उसको इतनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसी पैमाने पर वो दे देते हैं और उससे हमारा काम नहीं चलता। हम कहते हैं सिंगल विंडो पोर्टल बनाओ यार अपने यहाँ, वो नहीं बनाते। कुछ राज्यों ने बनाया, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं,
इसी तरह यूटिलिटी शिफ्ट करनी है, तार शिफ्ट करना है, बिकॉज दे डू नॉट। यार देखो ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, मैं ये सबको आपको भी समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई कम टू दैट। एक रोड बनाने में मुझे 22 किलोमीटर चाहिए होती है यार, तब रोड बनती है। और इसके वो क्या है, आप देखो यार, व्हाट इज द कॉस्ट टू नेशन यार। एक रोड मान लो 5,000 करोड़ की बन रही है, 5,000 करोड़। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% भी मान लूंगा, सरकार को पड़ती है 8% भी, तो एक साल में कितना उसकी कॉस्ट होगी? अगर एक साल डिले हो गया कितना? 400 करोड़ रुपए यार, 400 करोड़ रुपए यार। यार हम सब का ही तो पैसा है यार, इट्स नेशंस मनी यार। 400 करोड़ रुपए यार, मैं अपनी जेब से नहीं डाल रहा, कोई अपनी जेब से, बर्डन टैक्स पेयर ओनली यार। प्लस एक साल डिले हुआ, 400 करोड़ का वो लॉस, एक साल में 100-150 करोड़ रुपए में टोल से कमाता है। I mean, this is a kind of loss to the economy to the nation, yeah. So, friends, broadly मुझे यही सब अपनी, मैंने अभी राज्यों से कहा है कि स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट बनाया है, राज्यों को कहा है कि भाई लुक, इफ आई एम टू एंटर इनटू मेकिंग रूट्स इन योर स्टेट्स, अगर आप इस स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पे आप साइन करोगे तब तो मैं आपके यहाँ सड़क बनाऊंगा। ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे कभी नहीं पूछती, मैं 2 साल हो गया मुझसे, पिछली साल भी उन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए, इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए। उनका यही कि इस रोड में खर्च करना है। अगर मुझे कर्नाटक मेरे एक्विजिशन का डिले कर देगा, पंजाब डिले कर देगा, मैं रोड वहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं रोड कहीं और बना दूंगा। बिहार, यूपी, जो जिनको आप बीमारू कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा इस समय अगर कहीं पर अगर हमको सपोर्ट मिलता है, बिहार, यूपी, दे आर सो अपबीट है, मैं वहाँ सड़क बना दूँगा। गवर्नमेंट मुझसे ये नहीं कहती कि पैसे जो है ना आपको वहाँ क्यों नहीं बनाया, because they did not give me funds। तो अनुरोध आप सबसे ये है कि थोड़ा सा अगर आप लोग, बिकॉज बहुत डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स हैं, आपके पास हमारे प्रपोजल्स आएंगे, एयरपोर्ट के पास आएंगे, रेलवेज के पास आएंगे, फॉरेस्ट के पास आएंगे, राज्यों से आप सेक्रेटरीज मौजूद हो यार, अगर आप लोगों की थोड़ी सी इनायत हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। थैंक्स लॉट, दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। Thank you, sir. We are really enlightened to have your time, experience, and insight. As sir elaborately explained in the beginning, the significance of national highways and expressways in the national economy by enabling key infrastructure. As we know, roads are the key enabler to sustainable growth and enduring development of the country. Sir initially mentioned that investment of Rupee 1 in the road sector brings 2 to 3 times of multiplier effects. It is rightly mentioned, sir. CapEx, that is capital expenditure, as I mentioned in the beginning, in the road leads to sustainable development of economy and resilient growth of all sectors working together. Meanwhile, sir mentioned later that integrated network planning, corridor planning, through PM Gati Shakti and integrated infrastructure planning were the key indicators, key enablers to Viksit Bharat Sankalp 2047. Sir later emphasized on the development of non-access control highways and high-speed corridors to drive up logistic efficiency and finally paving the way for integrated multimodal connectivity. Sir very eloquently explained in a very candid manner that roads network will have to multiply 3 times from now to 2047, especially connecting core sectors linking important manufacturing hubs and economic nodes of the country to achieve Viksit Bharat Sankalp. In the end, we had videos that were displaying portals and modules for RFI, that is request for inspection, and DRAMS, that is drone analysis management system. Truly, they were amazing for close online monitoring and evaluation of the projects. Sir, finally, we have come to the end of this session. The floor is now open for discussion. Friends, you are kindly requested to keep your questions crisp, short, and
to the point so that more questions are taken for discussion. Sir, floor is open for discussion now. You can raise your questions. Yes, please. Sir, good afternoon, sir. Sir, one was कि रोड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 2x 3x बढ़ा, बट व्हेन कंपेयर टू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे पर्सनल कंफर्ट नो डाउट से बहुत अच्छा हुआ है, और व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रक, neither speed has not increased nor the cost has gone down, sir. So one of the factor which you told was कि access control से हम स्पीड कम कर दिए, सर. और क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे वन, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग इट वाइल्ड, सर, कि शायद हमारा जो फ्रेट मूवमेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमने 100 किलोमीटर का हाईवे बना लिया, पर शायद वो 15 या 20 किलोमीटर हो गए जहाँ पे ज्यादा एक्सेस हो रहा होगा. तो उसके अलावा क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे ये कम हो, या हम कैसे इसको और मतलब इंप्रूव करने वाले की जिससे हमारा कॉस्ट कम करे और स्पीड बढ़े? राइट यार, देखो, राइटली यू सेड कि एक अगर क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल बनाने से क्या होता है, हर जगह आदमी चिप इन नहीं करता है, चिप इन नहीं करता तो उससे वो नहीं होता. उससे दूसरा यही कि अगर मैं रोड की राइडिंग क्वालिटी इंप्रूव कर दूं यार, यू नो, राइडिंग क्वालिटी इंप्रूव कर दूं, अच्छी कर दूं, तो 10 to 15%. थर्ड, प्रैक्टिकली हर 40 किलोमीटर पर टोल प्लाजा है यार. अगर उस टोल प्लाजा पर का वेटिंग टाइम रिड्यूस कर दूं मैं. फोर्थ, जो मैं हाईवे है, क्योंकि वो प्रकाश बताएगा आपको यार, अगर हाईवेज पर मैं कुछ लोकेशंस पर ट्रकर्स के लिए एमिनिटीज बना दूं, उनको उनका कंफर्ट के लिए, ताकि वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनको वहाँ रुकने की, नहाने, सोने की, इस तरह की सुविधा मिल जाए, यू नो, दिस विल इम्प्रूव देयर आउटलुक एंड एफिशिएंसी. एट द सेम टाइम, which is not strictly National Highway Authority's work, but in a way it's ministry's work. but हमारे ऊपर अगर मैं थोड़ा सा उसको ये ट्रेन कर दूं कि ड्राइव इन लेन यार, दिल्ली से गुड़गांव 250 किलोमीटर है यार, आप अगर लेन में, अपनी लेन में ड्राइव करो, फ्लाई लेन में ड्राइव करो तो तब 250 किलोमीटर है. एक्चुअली व्हाट यू कीप ऑन डूइंग, इफेक्टिव कितना ट्रैवल कर रहे हो यार? 280 किलोमीटर यार, 280 किलोमीटर. डिस्टेंस भी हो गया, बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया. यानी कि मैं इन ए वे, these are few the factors, then of course we are holistically working on this. सर, एक मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाता है कि रूल्स जब प्रॉपर एप्लीकेबल ना हो. जैसे माइनिंग, जैसे वी अप्रोच द माइनिंग बेल्ट, जो माइनिंग अपना स्टोन्स और क्वारी स्टोन्स मूव करते हैं टू शिफ्ट टू रेलवेज, तो सर उनका एक मेजर कारण है कि रेलवेज में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि रेलवे में वे ब्रिज होते हैं, तो मेजर वेटिंग हो जाता है. वही वे रोड के साथ शिफ्ट करेंगे तो वो ज़्यादा भी ले जा सकते हैं. और ये तो सर कहीं ना कहीं ये डिस्टॉर्शन, अगर मतलब हम एक बार रूल एप्लीकेबल मतलब प्रॉपर एनफोर्स करेंगे तो जो एफिशिएंसी आनी होती है, कि जो अगर ऐसे ये वेटेज वाला इशू ना होता तो रेल बहुत इकोनॉमिक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा सर उसके लिए. वेरी वेल सेड संजय. सो व्हाट वी आर डूइंग, हर टोल प्लाजा पर हम लोग, बिकॉज टेक्नोलॉजीज आ गई हैं यार, तो वे टोल प्लाजा पे जैसी ट्रक पास करेगा, वे इन मोशन वी है पायलटेड यार. हम लोगों ने इसको पिछले 6-7-8 महीने से हम लोग इसको कैलिब्रेट कर रहे थे, कितनी जो वे इन मोशन है, उस पर ट्रक निकलता है 70-80 की स्पीड से, तो उसकी वेट इफेक्टिवली वेट कितनी एक्यूरेसी से ले सकता है. तो वो हम लोगों को अराउंड 90 to 93% एक्यूरेसी मिली. वी सेड कि 8%, 7-8% एक्यूरेसी नहीं मिल रही है. इसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इन ऑल टोल प्लाजाज वे इन मोशन, वे ब्रिजेस, जिससे ट्रकर को पता नहीं चलेगा, उससे निकलेगा और उसको इमीडिएटली क्या होगा, जैसे फास्टैग से पैसा कट जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ओवरलोड है उसको यार. क्योंकि यार देखो, हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया, बड़ी राज्यों से बात की, बड़ी चीफ सेक्रेटरी से, हमारे मिनिस्ट्री नो द काइंड ऑफ डायनिंग मिनिस्टर और हर चीफ मिनिस्टर को उसने इंगेज किया. होता नहीं यार, मतलब ये मैं कहूँ कि जो 8 टन के एक्सल लोड पर 8 टन के एक्सल लोड पर 28 टन का एक्सल लोड चल रहा है यार. इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आप उसको गौर फरमाना, किसी हाईवे पर ट्रेवल करना, अगर 6 लेन वो 6 एक्सल का ट्रक है तो क्या करता है, एक एक्सल को उठा देता है, मतलब 5 पे ही चलता है, एक एक्सल को चला देता है, उठा लेता है ट्रक, वो उसका पूरा का पूरा. वो क्यों करता है यार? क्योंकि अगर वो जो है ना 1000 किलोमीटर चल रहा है या 2000 किलोमीटर चल रहा है तो एक टायर का वेयर एंड टियर पूरे लेंथ में बचा लेता है यार. उसको फायदा तो 17-18 हज़ार रुपए जो उसके वेयर एंड टियर का होता है उसको. लेकिन मुझे नुकसान क्या होता है, जो रोड डिजाइन थी
6 एक्सेल पे लोड लेने के लिए वो 5 एक्सेल पे ले रही है यार। अब मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट नाउ वी आर सेइंग इट टू यू नो द ट्रक मेकर्स, वी आर मैंडेटिंग इट, कोई ऐसी डिवाइस ढूंढो ये उठे ही ना यार। तो यू राइट दैट्स क्लियर। और एक पॉजिटिव नोट सर, जो आपने बोला था स्पर्श कनेक्ट करने का सर, तो आई हैड बैच मीटिंग गति शक्ति रेलवे पर, तो उसका कॉल आया कि सुनो तुम्हारे गुड शेड जो भी है ना हाईवे के पास जा रहे जल्दी बता दो, एनएचआई वाले बोल रहे हैं कि हम ही रोड बना के उसे कनेक्ट कर देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग ना, नॉट दैट कि हर एक को इस पर हम नहीं देंगे यार, क्योंकि उसकी यार मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट को हम लोग इस पर दे देंगे, और कई जगह क्या होगा हम लोग इंटरचेंज बना के छोड़ देंगे अपने हाईवे पे, ताकि अगर किसी को अपनी फैसिलिटी लानी है तो उससे उसको उस इंटरचेंज से जोड़ ले यार। मे भी यार हो सकता है कि कोई स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर आना अगले 8 साल में, और मैं अभी से यार वहाँ रोड बना क्या करूँगा, तो मैं उस जगह अपना वहाँ पर इंटरचेंज का एक वो बना के लूप बना के छोड़ दूंगा। जब आप 8 साल बाद बनाना तो यार अपना क्लब कर लेना। Good afternoon, sir. Sir, Arijit from Railways in Lucknow, sir. हाँ अर्जित, Sir, I wanted to ask, sir, in Vision 2047, sir, you must be thinking about in future the fuel system will go out and electric vehicles will come in for freight also. तो उसके लिए क्या प्लान है सर हम लोग का? यार सुनो, ये काम मिनिस्ट्री का है, मेरा काम है रोड बनाना। जिसका जो काम है, मैंने दुनिया की चीज सोच नहीं रखी, आई एम सो सॉरी बीइंग सो ब्लंट। जो जिसका मुझे काम है रोड बनाना, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री थिंकिंग अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल्स एंड ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर डूइंग इन दैट। सो मुझसे जैसा कहेंगे कि आप राइट ऑफ वे में इसके लिए प्रोजेक्ट करो, आई विल कीप ऑन डूइंग। राइट, थैंक यू। अच्छा, अभी बाय द वे वो आएगा, अभी आफ्टरनून में विनय आएगा, जेएस मिनिस्ट्री। पोस्ट दिस क्वेश्चन टू हिम बिकॉज़ ही विल बी नोइंग अबाउट। Sir, we have successfully separated two-wheeler, three-wheelers from the main highways. But now we have trucks having from 30, 40 axle ton to four-wheeler passenger transportation. In these all corridors, whatever we are making at specific locations, are we going to separate these heavy loaded trucks from the passenger moving vehicles? Sir? No, because you know, That then it will impact the speed. no, two lane, of course on our expressway we do not allow 2 lane. We do not allow 2 lane. This you know, scooters and motorcycle. Ah, yes, sir. This we do not allow. But as per rule we do not allow, but then we have provisions for, yeah, there always there are provisions for them. That But we have done, sir. My Yeah. point is now we are having trucks carrying even 40 tons. And they cannot run more than 40 km and all, and that lane crossing discipline is not there in India. So that is impacting the overall transportation speed, even though we are making the high speed corridors. Any thought process? on बालाजी, that, sir? इसके लिए हम लोग वही जो दिस व्हाट वी आर टेलिंग टू संजय, हम लोग इसको एजुकेशन प्रोग्राम को मैसिवली यार हम लोग उसको एजुकेट कर रहे हैं कि थर्ड, यार सुनो यार, पैसा तो इट्स नेशंस मनी, इतना पैसा आएगा कहाँ से? रोड मतलब आप कह रहे हो कि पैसेंजर्स के लिए मैं अलग बना दूं, इस पर स्लो चलेगा। व्हाट इज इट कि आई ट्रेन देम, आई एजुकेट देम कि आप थर्ड लेन में चलो यार, पहली लेन फास्ट मूविंग है, उस पर कार को चलने दो, सेकंड लेन पर मीडियम ट्रक उसको चलने दो यार। दिस नो, आई हैव टू मेक इट ट्रेड ऑफ यार। सर इसमें जैसे रेलवे में कॉन्सेप्ट लाया सर कि जैसे हमारे पहले राजधानी 130 में जाती थी, मालगाड़ी 75, कुछ मेल एक्सप्रेस 110, तो फिर क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 130 का एक कॉरिडोर बना दिया कि 130 जाएगी, एक बंच एक साथ सभी राजधानियां क्लब कर दी, फिर 110 वाला क्लब। तो सर का मोरलेस वैसे ही है कि जो स्पीड डिफरेंशियल के कारण जो स्पीड कम होता है कहीं भी, उसे कैसे मतलब थोड़ा कम कर ले यार आपका जो है ना रेलवे इज ए कंट्रोल्ड मूवमेंट यार, ट्रेन चलती भर के यार। मेरा तो यार आपको जाना है, आप कार में उठाओगे और उसके बाद ये चले मौसम ठीक हुआ चलो देहरादून चलते हैं, इट कैन नॉट बी। माय एटमॉस्फेयर इज नॉट सो कंट्रोल्ड यार, योर एटमॉस्फेयर, रेलवे एटमॉस्फेयर इज अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, एयर इज अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है। आई एम बेसिकली क्या है, आई एम ए जनरल गुड यार। Sir, most of the time we are finding that the requirement of the road and the consumption is cyclical. For example, most of the big metros are having difficulties during some festival seasons or some requirement of the goods are more. Then there is a congestion happening on the road, and that will reduce the overall efficiency if you average it. So how to tackle such type of issues? That will always be there, yeah. You know,
what saying कि when there is a festival, where there is a peak season, when the peak activity, so you know जब आप अपनी जब यार कोई भी काम करते हो उसके पहले आप उसकी फिजिबिलिटी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो यार, उसकी रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो यार, उसमें ये सारे फैक्टर्स अकाउंट फॉर कर लेते हैं यार, राइट कि भाई ये रेट ऑफ रिटर्न होगा, इतने दिन इस पे बंद रहेगा, इतने दिन ये रहेगा, दैट इज फैक्टर्ड इनटू, सारा कुछ करने के बाद ही वो चीज़ आती है और दैट रिमेन्स इन द सिस्टम. Sir, in fact, Nahai has developed the country in a different level. But there is one aspect, sir, we can see that both passenger and goods transportation is happening in Nahai roads. In which what's happening, sir, this goods vehicle normally goes in slow, but the lane discipline is to be very, very difficult, sir. Slow moving goods vehicle, both sides it goes, and then fast moving passenger vehicle is not able to go. So there is a lack of awareness in this entire country, sir. So I think Nahai can take up this thing, and then massive enforcement and then awareness kind of things comes out, and it would be better, sir, for how to avoid the road Yes. accidents, sir. Right, Shankar, actually we are deliberating also, ministry will keep on doing, because ours is a big network to National Highway Authority. We have at toll plaza locations, we can educate them, we have ATMS system, we can educate them, we have NHI app, we can educate them. Of course, we are seriously thinking on this. Truck drivers are, so ignorant of their things, and then they always go side by side, sir. Yes, yes, And yes. it really a big menace for. Point well taken, it has to be, concerted effort from Yes. everybody. Sir. I mean, I just cannot serve for my responsibility business by saying that it's ministry's job. And one more thing, sir, health facilities also, sir, for the golden hour treatment, certain corridors, so I think it is in even the town area, something, there is no hospital which is available. Yes. So maybe this Nahai can. Prakash, since Prakash will tell, because I'll otherwise वो कल जो 1.5 hour बता नहीं पाएगा. Sir. This we are doing it, he'll tell in big way, and NHI is doing, of course, NLCL is my vertical only, Yes. he's the CEO of that, he'll tell in detail how trauma center are dealing, how ambulance we are, how ALS, how BLS, how air ambulance, how we are mapping all the, along the Yes. highways, all the hospitals, how we are linking, IRAD has come, sir. Now. yeah, how we are linking those hospitals to these these ambulances, so Yes. that primary care is given. So he'll tell you in detail Yes, about that. thank you, sir. Sir, wanted to know what is the frequency of drone surveillance? Good question. So what we do, जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसको हर मंथ एवरी मंथ भी, तो व्हाट वी डिड यार, क्या था कि इनिशियली व्हाट वाज द चैलेंज कि जो ड्रोन एनालिटिक्स होती थी, तो ड्रोन जो वीडियो हायर लगाते थे, जो शादी ब्याह वाले नहीं ना करते, वही लोग लगाते थे, दे डिडंट नो हाउ टू वो. सो वी इम्पैनल्ड, वी थ्रू आउट द कंट्री, वी इम्पैनल्ड ड्रोन agency holders, we trained them. So in under construction roads, every 6 months, the road which is constructed and which is on the traffic is planned every 3 months. सर मेरा एक सजेशन था सर इसमें कि जैसे ड्रोन का आप 1 महीने में एक बार मतलब सर्वे हो रहा है, जैसे सबसे और एक बच्चा मतलब बेटर तरीका है, मतलब इजी तरीका जो बिना खर्चे वाला है सर, कि जैसे गूगल मैप के साथ हम जहाँ भी गड्ढा होता है तो अपने आप गाड़ी स्लो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गूगल मैप से वो डेटा ले ले कि जहाँ हमारा स्लो हो रहा है मतलब वहाँ कोई दिक्कत है. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब ओला उबर वाले जो चलते हैं उनसे भी टाई अप करके किया जा सकता है कि जहाँ वो बंदा ड्राइवर हमें स्लो हो रहा है. गुड आइडिया. Sir, regarding land acquisition, you have planned till 2047. The projected land acquisition, are you doing in a single phase or multiple phases? Sir, if it is done in multiple. Almost all persons are coming from this side only. Please understand. Give the- यार सिंगल फेज this side मींस नो यार, ऐसा है कि जब रोड बनाएंगे ना यार, रोड बना, आई सपोज आई हैव टू मेक ए रोड समवेयर इन से 2029. एक्चुअली क्या अगर मैं पहले ही लेकर रख लूंगा तो मुझे उस रोड को ना, आई हैव टू अपकीप दैट रोड यार. मैं तो जो रोड बनाने से जब व्हाट एसेंशियली व्हाट टू डू कि जब मैं बिड करता हूँ रोड के लिए, उस समय मैं उसका पब्लिकेशन 3D लैंड कम्स टू मी, बिड इवेलुएट करता हूँ, 45 days इट टेक्स इवेलुएशन. इस बीच में कलेक्टर से कहता हूँ कि आप, बिकॉज
जिस दिन से लैंड मेरे यहाँ वेस्ट हो जाती है, आई हैव टू गिव 12% यार, उस वैल्यू पे 12% देना होता है मुझे एज ए इंटरेस्ट है। Yes, sir. तो मुझे वो भी मिनिमाइज करना है। So सो लिसन, माय एफर्ट इज कि जिस दिन से मैं कॉन्ट्रैक्टर को कहूंगा काम शुरू करो, तब तक उसके बाद मुझे रोड आ जाना चाहिए। सो दिस पीरियड शुड बी मिनिमम पीरियड सो दैट आई सेव दिस 12%। The rapid development is happening, so if you notify the areas where you are going to work, so it may have some impact. So otherwise, again, you have to, the acquisition cost may go up. And another suggestion, sir, like in Korea, one startup had proposed fixing some cameras to vehicles which will be crisscrossing so that you can measure the road quality and all, so that will have better this thing. And another suggestion, sir, regarding since NHA and all is working in a big way, I think students are not aware. Maybe you can suggest to CBSE to add a chapter on Good NHA idea. and road safety. गुड आइडिया। सो दिस व्हाट वी आर डूइंग अगेन, दिस ईयर हम लोगों ने ट्रिपल IIT दिल्ली से टाई अप किया। यू कुड फाइंड इट थ्रू ट्रिपल IIT दिल्ली ए स्टार्टअप ने क्या किया, उस पर कैमरा लगा दिया अपना 3D, और मूव से स्पीड और मेरे जितने भी रोड के डिफेक्ट्स हैं वो कीप्स ऑन आइडेंटिफाइंग रियल टाइम बेसिस पर, वेयर द साइनेज इज मिसिंग, वेयर इज माय दिस कर्व इज गोइंग, वेयर माय रोड इज स्पॉट, दे आर सेंडिंग इट। तो हमने पायलट किया। यार हमारे साथ क्या है, अभी अगर आपको दिखाएं तो बहुत मजा आ जाएगा, somebody कैन इसको वो कर दे। हम लोग क्या है कि इफ एनीबडी गिव्स द आइडिया, हम लोग उसको फॉरन भी जंप अपॉन इट और इसको पायलट करते हैं। एनीबडी सेड, और इसको हमने पायलट कर दिया। अभी आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा अगर इसको, राजेश आपको मैं करूं इसको, जरा आप दिखाओगे, इस पे प्रोजेक्ट हो जाएगा क्या? Okay, sir, we'll try, sir. हाँ? Sir. इसको दिखाओ, देखो आपको बहुत ही मजा आएगा यार। मतलब यू ऐसे ही जैसे राजेश को भेज रहा हूँ मैं। Sir, got it, sir. राजेश एक वीडियो भी आएगा। तो जैसे आई मीन जस्ट गॉड हैज गिवन यू आइडिया, तो हम लोग जंप करते हैं यार आइडिया पर। कोई NHAI पर से अगर अदर डे क्या हुआ, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने मुझे लेटर लिखा कि हम लोग बहुत सारा हमारा फर्टिलाइजर रेजिड्यू बन रहा है, बचता है, ये रोड में यूज इस्तेमाल हमें वी हैव टू डंप इट। हमने इमीडिएटली अपनी एक टीम भेजी, हमने कहा एक स्टेज पे पायलट करते हैं इसको, तो पायलट सफल हो गया। अब उनका हम सारा रेजिड्यू ले लेंगे। स्टील मिनिस्ट्री ने हमसे कहा, आज से 1 साल पहले की बात है, आई गेस आप लोग सब हिंदी समझ रहे हो यार, राइट? इसलिए हिंदी की मुझे आई एम मोर कंफर्टेबल हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम ट्रांसलेटिंग इन हिंदी। तो हम उसने कहा, एक मिनट रुकना, उसने कहा, स्टील मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई हमारा स्टील स्लैग बहुत निकलता है, इसको करें क्या, व्हाट कैन यू बी यूज इन रोड? आई सेड यस। हमने 8 महीने पायलट किया, अब उनका पूरा स्टील स्लैग ले ले रहे हैं। जितनी म्यूनिसिपल वेस्ट निकलता है, हम लोगों ने क्या किया, अहमदाबाद धुलेरा में, दिल्ली मेरठ पे, हमने कहा जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है, आपका इसका कूड़े का पहाड़ लगा रहे हो, इसको मैं रोड बना लूंगा, वी आर यूजिंग रोड। किसी ने एक दिन, किसी आदमी, आज से करीब 6 महीने पहले की बात है, somebody like this told me कि यार ऐसा क्यों नहीं करते हो कि रोड जो है उस पर डिवाइडर पर टर्बाइन लगा दो आप, उससे पावर जनरेट करो, क्योंकि 24 घंटे व्हीकल चलती रहती हैं, उससे जो है जो लाइट जनरेट है उससे पावर जनरेट करो। तो मैंने BPCL वालों को पकड़ा,